بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگوں کا 2023 کا جون کا پیپر ہے وہ اچھا گیا ہوگا اور آپ سبھی لوگ جو ہے اپنے اپنے منشا میں کامیاب ہوں گے۔ تو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ کوشچن جو ہمارے پاس ہیں اس کو ہم لوگ جو ہے ڈسکس کر سکیں۔ چلیے، تو میرے پاس جو پہلا کوشچن ہے کہ رسالۃ الملائکہ کے سلسلے میں کچھ سوال آیا ہوا تھا۔ کسی کو یاد ہے کیا سوال تھا رسالۃ الملائکہ کے سلسلے میں؟ ابو العلا المعری کے کس کتابوں کے نام تھے۔ اوکے تو ابو العلا معری کی، یہ تو بہت آسان سوال ہے، اس میں امید ہے کہ کسی کی بھی غلطی نہیں ہوئی ہوگی۔ چلیے، ایک سوال جو ہے میرے پاس ہے وکفا باللہ، اس طریقے سے کچھ تھا، وکفا باللہ حسیبہ یا نصیرہ کچھ کر کے، ولیہ وکفا ولیہ وکفا باللہ باللہ ولیہ۔ ولی، اس میں پوچھا کیا گیا تھا؟ با کیا ہے؟ اصلیہ، زائدہ، قسمیہ یا جر؟ تو یہاں پہ میرے خیال سے زائدہ ہے، کیا ہے؟ جی زائدہ ہی ہے، صحیح ہے۔ ہاں تو با زائدہ ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو زائدہ ہی لگایا ہوگا، زائدہ نو کے زاندہ۔ چلیے، اور ایک سوال تھا بین ترکیہ و روسیہ، اس طریقے سے کچھ سوال تھا، یہ ترجمہ تھا یا کچھ کیا تھا یہ؟ شارک فی حربی ترکی و روسیہ کر کے تھا، وہ محمود سامی بارودی کے بارے میں۔ ہاں، محمود سامی البارودی نے جو ہے کون سا 1869 کے اندر جو جنگ ہوئی تھی، محمود سامی البارودی نے جو ہے اس کے اندر شرکت کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہی تھی، یہ بتائی بھی گئی تھی ان کے جو ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ چلیے، آپ باقی لوگ جو بھی یہاں پہ ایکٹیو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا سوالات تھے، ابھی پہلے میں اپنے ختم کر لوں۔ چوتھا سوال تھا یہاں پہ الشعر والشعراء کے تعلق سے ابن قتیبہ کی کتاب پوچھی گئی تھی یا عمدہ پوچھی گئی تھی؟ کیا پوچھی گئی تھی؟ الشعر والشعراء کے تعلق سے کوئی سوال تھا؟ سر عمدہ نہیں عمدہ سر، پوچھی گئی تھی ابن رشید۔ عمدہ تھا، او، ابن العمدہ، رشید کے بارے میں۔ العمدہ کس کی کتاب ہے وہ پوچھی گئی تھی، تو ابن رشید کی کتاب ہے۔ چلیے، یہ بھی بہت نہیں، آسان اس طرح کا سوال ہے۔ سوال نہیں تھا، مطلب وہ کون سے کتاب ہیں جو ابن رشید کی ہے، وہ آپشن تھا بس۔ تو اب یہ پوچھ لیں کہ ابن رشید کی کون سی کتاب ہے یا عمدہ کس کی کتاب ہے، بات مطلب ایک ہی چیز ہے، مطلب آسان سوال ہے نا، اتنا تو مجھے امید ہے کہ بالکل۔ سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا۔ چلیے، استثناء کی بحث سے کیا پوچھا گیا تھا؟ استثناء مفرغ یا کچھ پوچھا گیا تھا؟ مفرق کی تعریف۔ تو تعریف میں کیا تھا استثناء مفرغ کی تعریف میں؟ یہ تھا کلام منفی غیر مذکور، کلام تام غیر مذکور، یہ دو آپشن۔ کلام منفی ہو اور کیا ہو، مستثنیٰ منہ جو ہے مذکور نہ ہو، یہی ہوتا ہے۔ جی ہم نے جیسے کلام جیسے تام، دونوں تھا ایکچولی سر، دونوں تھا، کلام منفی مستثنیٰ مذکور ہو، مستثنیٰ نہ مذکور ہو، تو یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے۔ وائز تھا کیا؟ نہیں، 4 آپشن تھا، کلام تام ہو۔ اوکے، ابھی پچھلے بار، اس سے پہلی بار جو سوال آیا تھا وہ مخلصون والا کیا سوال تھا جو پچھلے ایگزام میں آیا تھا؟ وہ بھی اسی طریقے لا یسدی النصیحۃ الا المخلصون۔ جی وہ اعراب کیا ہے وہ پوچھے تھے، الا المخلصون۔ وہ بھی تو استثناء مفرغ ہی ہے۔ جی بالکل۔ چلیے، ایک سوال کچھ تھا عندما نفقد، اتنا ہی جو ہے صاحب سوال نے بھیجا ہے مجھے۔ وہ انما نفقد الحب نکتب القصہ، و انما نفقد الحب نفقد الوطن نکتب الروایہ۔ یہ سوال جواب کیا کیا تھا اس میں؟ احلام مستغانمی، عبد الرحمن منیف، نازک الملائکہ، فدوۃ القان۔ احلام مستغانمی فدوۃ جو ہے، القان بھی تھی شاید۔ احلام مستغانمی کا فدوۃ قول ہے یہ؟ جی بالکل، وہ یہ دیکھے تھے ایک آرٹیکل میں ہے۔ ہاں، یہ احلام مستغانمی کا قول ہے۔ اور چلیے، اور اس کے بعد جو ہے مقابلہ کی کوئی مثال پوچھی گئی تھی، اس کے اندر کیا ہے، مقابلے میں کیا ہے، ایسا کچھ وہ تھا؟ جی شعر دیے تھے 4۔ 4 شعر دیے تھے، تو کتاب سے ہی تھا یا کتاب سے الگ تھا؟ نحو بلاغت الواضحہ سے ہی اشعار تھے یا اس سے الگ سے تھے؟ اسی سے تھے، وہ تھا سواد اللیل بیاض الصبح، یہ تھا وہ اوکے، شعر۔ یہ تو اسی کے اندر ہے، تو آپ کے جو ہے کتاب کے اندر ہے سواد اللیل اور بیاض الصبح، تو سواد اور بیاض اور صبح اور لیل جو ہے آپ کے مقابلہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، باقی جو بھی اس کے علاوہ جو آپشنز ہوں۔
चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक सवाल तशबीह से कुछ सवाल थे। तशबीह से तो नहीं थे। तशबीह ज़िम्नी वाला था वो। तशबीह ज़िम्नी वाला जो सवाल था, क्या कहते हैं, ये भी किताब से ला ही था। तुनकिरी ला ला तुनकिरी तुनकिरी अतल अतल करीम करीम मिनल मिनल गना गुना। फसैल हरबुन लिल मकानिल आली। तो ये तो पहला ही शेर है तशबीह ज़िम्नी का, है ना। तो जो है जी जी, ला तुनकिरी अतल करीम मिनल गना मुतनब्बी का शेर है, या पता नहीं किसका शेर है अबू जो है। तम्माम का, अबू अबू तम्माम। तम ओके ओके, चलिए। तो ये भी मतलब किताब से ही, बलागतुल वाज़िहा से भी ये सवाल बने हुए थे, बाहर से नहीं थे। चलिए, उसके बाद अनासिरुल बलागा पूछा गया था आप लोगों से। जी जी अनासुल। अनासिरुल बलागा में तो वही है, आपको क्या शुरू में जो लिखा हुआ है क्या है वो, क्या पूछा गया था उसके अंदर। लफ्ज लफ्ज व माना और तालीफुल बिल अल्फाज। वो है ये हाँ, तादियत पहला ऑप्शन माना था, यही सही था। लफ्ज पहला ही था। लफ्ज माना और तालीफुल बिल तादियतुल अल्फाज। माना व लफ्ज इज़न लफ्ज ऐसे कुछ था नहीं, वो। लफ्ज माना और तालीफुल बिल अल्फाज। ओके ओके, तालीफ। तालीफुन लिल अल्फाज। चलिए, तो ये वाला ऑप्शन ही सही था। ये तो शुरू के बलागत की किताब की, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, वहीं पे नीचे जो है 3 अनासिर जो दिए थे, जहाँ पे फसाहत बलागत की बहस शुरू हो रही थी, तो वहीं से ये सवाल जो है उठाया गया होगा। हाँ, इसी तरह बलागत के शुरू से ये था, वो जो है तालीफ वाला शेर दिया था वो। क्या शेर था, था वो। क्या था। अन्ना यकूनु अबल बरियति हाँ, आदम अबल अन्ना बर्रियत में यकूनु मुब्तदा और खबर के अबल दरमियान में जो व फसल किया था। खबर। अबल हाँ बरियति आदमू करके जो शेर है, मुतनब्बी का शेर है ये। जी मुतनब्बी का ये शेर है। ज़ौफ़ तालीफ है इसके अंदर। ज़ौफ़े तालीफ है इसके अंदर। चलिए, इसमें क्या पूछा गया था। मतलब वही क्या है इसमें ओके ओके, कमी। मतलब क्या खराबी इसके अंदर है, मतलब ज़ौफ़े तालीफ है, सर तो ताकीद है। ये तो ताकीद लफ्जी की मिसाल है ये। ताकीद लफ्जी की मिसाल है। हाँ ताकीद बिल्कुल लफ्जी की मिसाल कैसे होगी, ज़ौफ़े तालीफ की है ना, मतलब इधर उधर हो गया है। नहीं नहीं, बलागा में जो है वो तीसरी शर्त है, वो ताकीद लफ्जी में है। लेकिन वहाँ उसका ऑप्शन नहीं था ना। हाँ ये ऑप्शन है, ज़ोफ़े तालीफ था, इक़वा था तो और तो रफ़ा वहाँ नस्ब ज़ौफ़ तालीफ मुक़य्यद। ही होगा उसका, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन और दूसरा नहीं था। ओके ओके इक़वा वगैरह था तो वो ओके ओके ओके। मतलब वो अन्ना की खबर या इस्म, यकूनु की खबर या इस्म, उसमें भी तो कुछ हो सकता है, हाँ, वो क्योंकि मतलब रफ़ा उसको नस्ब फसल किया है। मुब्तदा और खबर के दरमियान में उसने जो है फसल कर दिया है। इसकी एक्चुअली वजह सर से ये ज़ौक़ क्वेश्चन तालीफ समझ में ना आया, खराब है। क्योंकि जो मिसाल है बलागा में वो हम्म जो ताकीद लफ्जी में बयान किया गया है, ज़ोफ़े तालीफ में दूसरी मिसाल है, वो हसन बिन हम्म साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का शेर है। इसकी हम्म। मिसाल वो ताकीद लफ्जी में है, तो थोड़ा इसमें ये चलिए, डाउट है। वो जो है ऑप्शंस के हिसाब से होगा, वो जो वहां पे जो जो ऑप्शन होंगे, तो ये ज़ौफ़े तालीफ की भी मिसाल बन सकती है, क्योंकि जो जोड़ने में जो है क्या किया गया है, जी जी, इधर उधर आगे किया गया है। पीछे तो आगे पीछे बलागत किया। के दूसरे किताबों में हो सकता है कि ज़ौफ़े तालीफ में इस मिसाल को दिया हो उन्होंने, तो वहां से भी ये उठा सकते हैं। बाकी ऑप्शंस क्या क्या थे उसके हिसाब से ही जवाब जो है ये होगा, ठीक है ना। तो अभी तक मान लेते हैं कि ज़ौफ़े तालीफ की ये मिसाल है, ठीक है। चलिए, अगला ये सवाल था, मुतनब्बी का कोई शेर पूछा गया था कि किसका शेर है। जी जी, मुतनब्बी का कद नाफी ऐसे करके अल हुब्बू करके था, वो देखा हो अहमद हसन ज़यात में है वो शेर मुतनब्बी। और एक जुहैर का पूछा गया था, महाराना वो मा इल्ला अराना महारन, इस नकुलु तरह का इल्ला है ना। मादन औ इल्ला मारन करके महारन। जो है। महारन। मुतनब्बी का जी शेर जी हो वो। गया, जुहैर का शेर हो गया, ये दोनों शेर भी हसन ज़य्यात के अंदर मौजूद हैं। हसन ज़य्यात से ही और शेर वो लोग उठाते हैं, तो जो है मा हज्जाज अरान बिन यूसुफ का भी था शेर। मा मैं अराना अब नकुलु औ मादन औ मारन करके शेर है कुछ ऐसे, मुझे हाँ, भी इसी याद है। तरीके से एक उसका था, वो पूछा था शेर दे के कि किसका है। उसने जो कहा था कि हज्जाज अगर मैं अपना इमामा उतार दूंगा तो तुम मुझे पहचान लोगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो कूफा के अंदर जो उसने खुतबा दिया था, बिल्कुल अनब खुद जुल्ला बिल्कुल। खुतबे में मौजूद जो शेर था, जो है शेर जो है वो पूछा गया है ना। अना इब्नु जल्ला। हाँ ना, जी इब्नु जला, है ठीक ना। जी। हम्म। चलिए, मतलब सर तीन। इससे पहले वाला जो सर वो एक बार फिर से बताइए, इससे पहले वाला। जुहैर का शेर पूछा, मा अराना नकुलु इल्ला मादन औ मारन करके एक शेर है, मुझे सही से याद नहीं, उसका इधर उधर हो जाए। इस जी जी, तरीके वो से शेर के जोहर का ही जुहैर। होगा ना। जी जी, जुहैर का है वो शेर। जी जी चलिए, जोहर का है। बाकी खुतबा में मौजूद ये किसका, हज्जाज का है ना। चलिए, एक जो है सवाल था, दौला तशजीया करके कुछ था कि किसको दिया गया है, या कुछ ऐसा सवाल था क्या। जी जी, वो नजीम महफूज की किस किताब को दौलत तशजिया मिला हुआ है।
नजीब महफूज या किलानी? सॉरी किलानी, सॉरी। किलानी से पिछले बार भी आया हुआ था सवाल मेरे ख्याल से जो है। हाँ, कातिलो हमजा। कातिलो हमजा जो है ना, तो कातिलो हमजा था उसमें? नहीं नहीं, अनल कातिल था। तो उनकी कातिल कौन सी किताब? कुल्लु आमिन वांतुम बिखैर, इसको मिलाए। कुल्लु आमिन वांतुम बिखैर, तो ये तो उसकी है ना, महमूद तैमूर की है ये तो। क्या सवाल क्या था वो बताइए। ये सवाल ये था कि कि सर, सवाल नजीब ये था किलानी कि की कुछ नहीं, किताबें सर, थी, सवाल उसमें से सवाल किसको ये था तजिया दौला तजिया मिला है, किस एक किताब ये पर? था महमूद एक तैमूर को दौलत तजिया कौन सी वाली बुक में मिला था, वहां जी पर जी हाँ, लिखा ये था, वाला था वहां पर महमूद लिखा है। तैमूर के कौन सी किताब। ओ, महमूद तैमूर और नजीब किलानी में आसमान जमीन का फर्क है हुजूर वाला, आप लोग नजीब किलानी बता रहे हैं। महमूद तैमूर की कौन सी किताब को दिया गया था? तो इसका मतलब कुल्लु आमिन जी जी वांतुम बिखैर को जो है उनको मिला है, जी ठीक जी, है ये ना। वाला। चलिए बहुत शुक्रिया, क्या कहते हैं। चलिए, और मजल्लत फ़नून के ताल्लुक से क्या सवाल था? कौन उसके लिए? किसका है? किसका एडिटर है? कौन? नहीं, तहरीर, मुहर्रिर। नसीब मुदीर आरिजा था। तहरीर था, जी मुदीर तहरीर बिल्कुल। था सर। चलिए आकिब साहब क्या कहते हैं आप? जी क्या जी, नसीब रजा का है। कल की एक बात याद आ गई होगी। जी, चलिए, इब्ने तुफैल जो है के साथ ताल्लुक और से क्या? अस्साइक के बारे में भी मेरे ख्याल में सवाल था। चलिए अभी उस पे आते हैं। अस्तान के बारे में, बिलाल के बारे में। चलिए इब्ने तुफैल पे देखिए, इब्ने तुफैल पे क्या सवाल था? वो एक लंबा। काना अजीबन फैलसूफन, ऐसा था कुछ। कान तबीबन व फैलसूफन व तबीबन व फैलसूफन, कतब हाँ अलकुस्सा अरे इस तरह ये का। सवाल तो बिल ये सवाल तो आपके मॉक टेस्ट में मैंने दे रखा था, सेकंड वाले मॉक टेस्ट में। जी सर, हाँ तो हाँ बहुत क्वेश्चन आए थे उसमें। चलिए, तो ये जो है फैलसूफ करके पूछा गया था कि कौन है ये पूछा गया था। जी जी जी। सर। फैलसूफ तो इब्ने तुफैल ही। इब्ने रुश्द आते हैं तो इब्ने रुश्द हमारे कोर्स में नहीं है, और जो है इब्ने रुश्द के साथी जो है इब्ने तुफैल है, तो इब्ने तुफैल उसका जवाब। और इब्ने रुश्द नहीं थे ना उसके अंदर, नहीं सर। ऑप्शन में नहीं थे ना। और इसी चलिए। तरीके से हाँ अहमद हाँ जकी अबू शादी के बारे में भी था, इसी तरह का, डॉक्टर का, कि उन्होंने जने कौन सा तरबियत नहल और जने कौन कौन सी वो डॉक्टरी की तरबियतुन थी। नहल का उन्होंने जो है वो कर रखा था, कोर्स कर रखा था। बैक्टीरियोलॉजी जो है, जो बैक्टीरियात हाँ जो तो हाँ बैक्टीरियात यहाँ, पे जो होता है वो जी वाला जी, कोर्स कर रखा। वही चलिए, वाला था। ये सब PYQs के सवाल आते हैं, ये सब कई बार आ चुके हैं। चलिए, आपके गुलाम अली आजाद के ताल्लुक से क्या सवाल आते हैं? वही थी सुबहतुल मरजान जो है, उसकी दूसरी उसका फसल में दूसरा किसका डिस्कस तज़किरा था, है। हाँ, दूसरे दिन में दूसरी फसल में किसका तज़किरा है? तराजिम था तो शायद हमने सर, तो हमने लिखा था। तराजिम लगाया, 43 तराजिम तराजिम है, बाज़ शुअरा। जगहों पे 45 हाँ, जो है। तराजिम का लिखा था हमने। जी जी, ये सारी चीजें तो आप लोग का खूब ही जानते हैं, इसमें तो गलती नहीं हुई होगी उम्मीद है। चलिए, मुजहिर के ताल्लुक से क्या सवाल था? किस में है ये? फी लुगा में है, हाँ, तफसीर में है, किस में जो है? थी मतलब जी ये में तफसीर मौजूद है। है या लुगा है, फी फलसफतुल फलसफी लुगा लुगा है एक था। या लिखा तफसीर था है। हमने। ऑप्शन में तो लुगत हमने सिर्फ तो था या फलसफतुल लुगत था? था सर। फलसफतुल लुगा था। हाँ, तो फलसफतुल लुगा, फलसफतुल लुगा। ठीक है ना, फलसफतुल लुगा होगा। ये सीन जो है यही इधर लगा कर है। लीजिएगा, ठीक है, बस फलसफतुल लुगा। चलिए, बाकी जो है रिजालुस सिंध वल हिंद के ताल्लुक से क्या सवाल था? कि उसमें हाँ, कि कौन सी उसमें कौन सी तक। सदी तक का जो है ये उसमें जिक्र किया है, तो ये भी हमने आपका जो है आपके PYQs में से सवाल है, आपके 7वीं मेरे सदी है ख्याल ना। में 7वीं सदी तक। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, बाकी जो है जोहर के अशार तो हो ही गए हैं। महाराना नकुल इल्ला मारना मारन, आप लोगों ने एक ये भेजा। था कि शुक्रुल्लाह जर जो है उनका ताल्लुक कौन सी जमात से है। शकरुल्ला जर का ताल्लुक जो है ये तो आपके वो हो गए, आपके जो है हाँ साहिबुल उसबा से। फिक्रा लिल तो उसबा अंदलुसिया। हाँ, उस्मान साहिबुल, लुसी, उसमें चारों ऑप्शन थे, अपोलो का, दीवान का और राब्ता हाँ, कलमिया का। और ऐसे भी कलमिया। आया था उस बार में कौन कौन नहीं है, एक दो सवाल आए थे वो, फिर वो और रशीद अयूब दिया हुआ रशीद था। अयूब का 2 बार आया था, वो 2 बार आया रिपीट था हुआ वो था, क्वेश्चन मतलब मेरे लिए। हाँ, एक ही सवाल 2 बार था। सेम सेम सवाल थे। जी जी सेम सर। सवाल 2 बार, उस बार उनसे मतलब में कौन रशीद कौन नहीं है, तो रशीद अयूब दिया हुआ था एक। रुस्बा हाँ, उस्बा अंदलुसिया में रशीद कौन अय्यूब नहीं है। आपके जो है,
रशीद अय्यूब आपके किस में हो गए? आपके राब्ता कलमिया से हो गए, है ना? राब्ता कलमी। तो 2 बार इसको हम मान लेते हैं, रशीद अय्यूब राब्ता। ठीक है, तो ये 23 सवाल हम लोगों के पास आ चुके हैं। बाकी और किसी ने मुझे भेजा है नहीं अभी तक, तो और याद कीजिए और बताइए। सर और एक ये था, और ट्रांसलेशन मैच था। करने के लिए आया था कि जैसे फदवा तोकान महदी मालयाम था उसमें, और अबुल कासिम इसी शाबी तरीके का से आया था, तो वो कौन से ऐसे थे, कहाँ पे? अपोलो था, उसबा था, अबुल कासिम शाबी का। ओके ओके, अबुल कासिम शाबी का आया फतवा था। तुकान वाला बताइए पहले। फदवा तुकान वाला मेरे और ऑप्शन याद नहीं है, उसमें वो दो मैच चार करने के ऑप्शन लिए आए थे, आया था। फर्रुख प्रोग्राम का आया था, वो वहदी माल महदी अयाम, मालयाम तो था, और यार मैं इसी जब तरह फॉलोइंग का। थे। मतलब एक हाँ ऑप्शन से लग जा रहा होगा मेरे ख्याल से, जी है जी ना? सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एक हाँ ऑप्शन एक। वहदी फतवा तुकान का वहदी मालयाम, तो ये तो ठीक है। और आपका जो है हाँ कासिम शाबी साहब किससे लगा कर आए हैं, बताइए जरा आप लोग। अपोलो से जमातो सर। अबोलो से थे वो, हाँ, रोमांसी थी ना, शायर अपोलो से रोमांसी। थे, अपोलो के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बताइए। और सर ट्रांसलेशन में आया था, मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग जो आया हुआ था आपका जो है, ये गसीलुल अमवाल तो करके कुछ हमने था। सर वहां पर दो ऑप्शन थे, तथहीर। एक गिसलुल अमवाल या नहीं था, दूसरा था गसीलतुल अमवाल, गसलियतुल और अमवाल, सॉरी, गसलियतुल तथहीरुल अमवाल और अम्वाल भी था। गसलुल अमवाल। तथहीरुल अम्वाल भी था शुरू में ऑप्शन, तो आज गस, से। गसलिया था गसीलुल अमवाल था या नहीं? सर, एक था गसलियतुल अमवाल, दूसरा था गसिलुल अमवाल, गासीन लाम, और पहला था गसलियतुल अमवाल। एक ये था, लेकिन और एक एक जो है विदाउट हाँ, इसके था, गसलुल बिल्कुल अमवाल। बिल्कुल, ये दो थे सर जी। ओके, और एक तीसरा तथहीर था। तथहीर तो मेरे ख्याल से नहीं तस्वीर, हाँ होना हाँ, चाहिए। तस्वीर था। तथहीर जिस तो नहीं तस्वीर, होना चाहिए। कहीं मिला आकिब साहब तथहीर क्या? सर मैंने देखा था, गसलिया और गसलिया दोनों बता रहे सही। नहीं मैंने देखा नहीं उसको। मैंने चेक किया था, गसलिया और गसल दोनों दिखा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये गसल भी दिखा रहे हैं, और गसलिया भी सर। गसलिया भी। चलिए, देखना पड़ेगा फिर इसको, हम डिक्शनरी में देखेंगे जवाब क्या आता है। अगर दोनों आ रहा है तो फिर हम क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डिक्शनरियां सर मेरे एक पास हैं, अगर मुझे नेट का नहीं मानते हैं ये लोग, डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, अगर होगा तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत दोनों आ रहे थे। नहीं। जी। बाकी आम तौर पर जो पेपर में यूज होता है, गसीलुल अमवाल यूज होता है, सीन ये के तो बाद जो है या होती है। चलिए। और और सर एक था प्रोनाउंसिएशन में NSG, एन एफ SG, जी, एफ नहीं, SS। NSG, जी सर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नहीं क्या सर, है? न्यूक्लियर कुछ था, एक सेकंड सर, ये था न्यूक्लियर। सप्लायर, ऐसा कुछ था, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, किसका बज रहा है बहुत ज्यादा? ओके। इसका किसी को याद है? जी सर, इसका था जो दूसरा वाला दिया था मैंने, मजमुअतुन मौरिदियु अल मुवादुन नबविया, ये मैंने दिया था, फिर डिक्शनरी से देखा था यही था, क्या और भी है कुछ थे। मजमुआतु मजमुअतुन मूरिदी, मीम वाव रा दाल या, मौरिदी अल मवाद अन नबविया। अल मवाद अन्नबविय्या। दूसरे चलिए, दो अब चार अब ऑप्शन थे, वो बहुत लंबे थे, साफ दिख रहा था कि 3 डिजिट का है, तो यही होना चाहिए, फिर यही दिया था सर। चलिए देखते हैं इसको। ग्रुप के लिए तो मजमुआ ही आता है, जी और सर। प्रोवाइडर के लिए मोरिद आता है। ठीक है, और और नवविया के न्यूक्लियर लिए के वो लिए आता है। चलिए फिर देखते हैं। बाकी अगर और ऑप्शंस पता होते हैं तब ज्यादा क्लियर हो पाता है। चलिए। और सर वो भी ऑप्शन था, शायद एक क्वेश्चन आया था, वो अगजिया वाला, वो जो आपने इसमें भी डाला था, क्या कहते ट्रांसलेशन हैं, का, फूड एंड। फूड एंड एग्रीकल्चर वाला है। जी जी सर, हाँ वो भी आया था शायद। वो क्या है उसका? याद नहीं आ रहा सर, उसका हमने लिखा था कुछ, वो आपने डाला था इसमें PYQ में भी, हाँ, ट्रांसलेशन थी वो। ट्रांसलेशन वाले इसमें था वो। जी सर, चलिए, फूड पहले एंड एक सप्लाई। उसको याद कीजिए पहले, फिर बताइए मुझे। मुजारे मुतलक पे क्या सवाल आया हुआ था? मुजारे मुतलक, मुजारे मजजूम, मुजारे मरफू, मुजारे मंसूब करके कुछ हाँ सर, सवाल। नहीं ये आया था, इंग्लिश में आया था, एक आया था मुजारिया मरफू, हाँ हाँ। मुजारिया मंसूब, मुजारिया मजजूम, और मफूल मुतलक, यहाँ इसको से ऑप्शन आया था एक। मैच करना एक था इसको।
जी जी सर, एक आया था सब्जेक्ट, दूसरा आया था इम्परफेक्ट, तीसरा आया था एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट, और चौथा आया था कुछ जैसे सम टाइप तो मुतलक मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव। जी सर, ये किया था मैंने कि मफूल मुतलक ऑब्जेक्ट में आएगा, बाकी फिर सब मैच हो गए। उसमें से जो मुजाहिर मारू मरफू है उसको आ रहा था इम्परफेक्ट ओके इंग्लिश ओके में। ओके ओके चलिए। और और सर ये जो अभी हम वो ज़ौफ़ तालिब जो अभी हमने पढ़ी थी ना, वहां पर जो वो शेर था पिछला वाला, वहां पर दो ऑप्शन ये भी थे कि अगर रफा इसमें है और हमने मंसूब बनाया है, और मंसूब है तो हमने रफा बनाया है। फिर वहां था ना वो नहीं नहीं, अन्ना यकून। ऐसी तो कोई चीज नहीं है वहां पे कि रफा है तो मंसूब बना दिया है। वहां पे ओके। एराब में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि वो तरतीब गलत है। और जहाँ पे होनी चाहिए तरतीब, जो सही जो चीज है वो मुब्तदा खबर के दरमियान या मुजाफ मुजाफिले के दरमियान जो वो होना चाहिए, गैर फसल होना चाहिए, तो फसल किया गया है, इसलिए वहां पे वो गलत है। जी आतिफ साहब, यही बात है ना उस मिसाल में? जी जी, उसने मतलब बीच में कुछ ऐसी चीजें ला दी हैं जिससे माने में गड़बड़ी पैदा हो रही है, हाँ साफ माने समझ में ऐसा, नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है ना तो कि वहां पे मुब्तदा, एराब बदल दिया गया है। ये एक नहीं नहीं, ऑप्शन वो एराब था, का नहीं हाँ है, एराब एराब का नहीं नहीं बदला है। गया तो लिहाजा वो नहीं हो पाएगा। चलिए। एक ऑप्शन उसमें था ये, उसको जिसको जुबान पे वो बारी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं सर, जो पढ़ने में ताकीद। दुश्वारी हो। ताकीद। हाँ, वो एक ऑप्शन था उसमें। और ये दो ऑप्शन थे, रफा की जगह नसब है, नसब की जगह रफा है, और भी कोई चौथा ऑप्शन था। ताकीद का नहीं था, इकवा था उसमें एक, और इकवा एक था, ये हो हाँ गया, और इकवा भी दो था। इकवा था, एक ज़ौफ़े तालीफ था, तीसरा हाँ जो था ज़ौफ़ वो तालीब, रफा का तीसरा था, वही था, चौथा मंसूब का मारफू था। से मंसूब, मंसूब से ये मारफू। जी। बताइए, ये लफ्ज था क्या वहां पे किसी के इसमें? हाँ सब्जेक्ट ये भी था ना सर, ये किस? ये इसको ये लिखा था हमने, मंसूब वाला, मुजाहिर अल मंसूब में और सब्जेक्ट आया था। मतलब मैच वाले में ही जो है ये सब्जेक्टिव भी जी जी लिखा सर, हुआ था। जी जी सर। चलिए। और ये कुछ था जूसी करके, कुछ था JUSSIY। हाँ हाँ, जुसेसु था ना कोई सर, वो जो मैंने बोला था, वो मजलूम में आ रहा था, मुजाहिर मजलूम में गालिबन। ओके, मतलब उसी के साथ सब कुछ था, है हाँ, ना? ये चार ऑप्शन दिए थे ना, ओके ओके सब्जेक्ट चलिए। टू जुसेसु। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक औ के साथ आया था वो, हम्म, मतलब औ यतिम शिफाउ, इस तरह का आया था। तो इला के मामले में मामला था, पीछे का वो शर्तिया जुमला था कि अगर आप मतलब ऐसा करेंगे, मतलब ऐसा करते रहे यहाँ तक कि शिफा मुकम्मल हो जाए। तो हम्म, औ था वो इला के मामले में। वहां और भी ऑप्शन थे हम्म, कि अत्फ का है या क्या है, हम्म, लेकिन इला वाला जो था वो लगा करके आए हैं। इला के उसमें था भी वो, और ओके। ऑप्शन मुझे याद नहीं है। एक तो अत्फ का था और एक ये था कि इला आवाज के नहीं आ रही मामले सर, में। जरा ऊंचा मतलब एक बोलेंगे। शर्तिया जुमला के बारे में सवाल है ना? हाँ सर, हाँ, बीच में वो था, वो ये औ था, आया हुआ था। हम्म, ये डॉक्टर की अब नसीहत सुनो, अब यतिम शिफाउक, ये वाली मिसाल थी। उसमें आया था कि अब इला की जगह आया है, या फिर अब आया है इला की जगह, इला। ओके। दूसरा था ये इल्ला की शरत और जगह, जवाब इल्ला शरत की है। जगह है कि इला की जगह है ना? हाँ, और एक था कि ये इला की शरत और जगह। जवाब शरत है। और इला की थोड़ी हाँ, क्योंकि डेफिनेशन लंबी यहाँ आई तक है। के मानने में इला जो आता है उसी माने इला में है वो था क्योंकि भी वहाँ, बयान कि मुजमिरा, ओके डॉक्टर इसमें भी की लिखा सुनो था आगे। यहाँ तक के शिफा हो मुकम्मल जाए, हो जाए। हाँ, मुकम्मल इसमें हो लिखा था फिर जाए। कि इला के साथ आगे बयान मुजमिरा है, जिसकी वजह से फिर नस्ब दिया जाता है मुजाहिरे को। तो ये ओके जो वाला दिया था हमने। ओके ओके, इस तरीके की मिसाल जो है मैंने उसमें दी थी आप लोगों के, जो है और जो सर, पलाको वाला नहव वाला वो था। चलिए। जमात अपोलो का एक आया इसमें भी था। था, एक इसी तरह का एक और था, एक था इस्नाइल मारूफ फतनाल शुक्र। हाँ, हाँ इस वो भी नइल था। मारूफ, ये जो है मतलब अब वो है जवाब अमर है ना? नहीं नहीं, वो ऑप्शन नहीं था, ये हाँ, था कि मुजाहिरा क्यों बढ़ रहा है ये। फा फाउ ये फा सबबिया क्यों है ना आया सर। है, फा हाँ, सबबिया है या क्या है? हम्म, उसमें एक तो फाउ तो सबबिया था, दूसरा था कि ये जो आगे ये मुजाहिरा का जज्म इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें भी ये ऑप्शन था, बयान जो है मुजमिरा होता है इसमें, जिसकी वजह से आगे मुजाहिरे को ये मिलता है। हाँ तो फा जो है यहाँ पे एक अनमुजमर था होता है कि आखिर। अम्र 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 है, और उससे जो है फा ताकीब मरबूत है, मतलब फा हम्म, ताकीब का है ये। तो उस वक्त समझ में नहीं आया, मैं तो ताकीब का ही लगा के आ गया। नहीं सर, इसका वो मुझे था तो कि जहां फाउ तक सबब। याद आ रहा है कि यहाँ पे अनमुजमर होता है, क्या कहते हैं हाँ हाँ, वही वही सर, वही ऑप्शन था आकिब ना साहब? हो उसमें। सकता है, हो जी जी सकता सर। है, मुझे मालूम कंफर्म नहीं है इस हाँ मामले हाँ में। सर, ये कंफर्म है मेरी तरफ से कि इसका मुजमिरा होता है, जिसकी वजह से आगे मुजाहिरे हरूफ को ये जो ये देता है, मंसूब करता है।
चलिए तो लग फिर भी रहा वही है लगाया, मैंने क्या वही नाम लगाया है, था। मैंने इदरीस ने जो है यही अनमुज़मरा वाला लगाया, इसलिए इसको सही करने की इसमें है। असल में सर कल पढ़ा था मैंने देर से, चलिए इसलिए याद है। चलिए, बहुत अच्छी तो बात। चलिए, जमीयत अपोलो के साथ आए थे 4 डेफिनेशन आए थे, तो उनमें से कौन सी डेफिनेशन नहीं थी उसकी? मतलब हाँ, जम उसमें ये भी एक सवाल था। हाँ, मतलब जमइयत अपोलो की कौन सी चीज नहीं है ना? जी जी, हाँ, और उसी 4 के ऑप्शन थे रिलेटेड, उसमें कि क्या क्या चीज है और 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 कौन एक सा सवाल नहीं है, पहले, मतलब उसके मकासिद में। वो तो हाँ पहले उसी आपको के बताया रिलेटेड ही एक गया सवाल था आया कि हुआ जो था। है 3 उसके जो है उसूल बने थे जब जो है जमयत अपोलो बनी थी, तो उसमें से 3 रहे होंगे, एक जो है अलग से रहा होगा, है ना? असल में सर हाँ, पता है पहले क्या हुआ था? पहले ये जो डेफिनेशन है ना, ये जो 3 डेफिनेशन आई है ना, पहले ये एक ही क्वेश्चन में आई थी पूरे, फिर नीचे हाँ। लिखा हुआ था एक ये जो किसका मतलब ये है, एक तो जमीयत ये था अपोलो कि है। शायर को जो है मादी और हिस्से एतबार से जो है हाँ तरक्की हाँ, देना। ऐसा कुछ लिखा था। फिर और हाँ नीचे लिखा एक था, ऑप्शन था कि वो जो गलत जो था वो था कि मतलब अदब अरबी को पूरे आलम में फैलाना, ये था गलत वाला उसमें। बाकी तीनों, सर क्योंकि एक मैं, नीचे ही फिर एक और क्वेश्चन आया था जिसमें पूरा आ गया था, वो तीनों वो दे दिए थे एक लाइन में। हाँ 2 उसमें ये आए थे तीनों दिए क्वेश्चन इस हुए थे, तरह के। फिर लिखा हुआ था एक जगह आगे तो ये अलग कौन सा अलग ये। पूछा, और एक जगह पूरी एक जगह देखे कि ये किसका वो है, किसके ओके मकासिद में ओके, से है। किसका ये? तो चलिए, वो, हाँ आप जी, तो चलिए उसमें वही चलिए। नहीं था अल अदब, मतलब नशरुल अदब अल अरबी फिल आलम, हाँ हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ किस वो किताब वाला से नहीं इन्होंने था। बनाया है, समझ गए समझ गए। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। तो मतलब जमीयत अपोलो पे 2 सवाल थे, है ना? जी सर। और सर ये आया था शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद आया था नवाब सिद्दीक हसन खान, अब्दुल कादिर फसफरी और अब्दुल हाई हसनी। तो ये तो इनकी सवाल डेट ऑफ पहले भी डेथ के आ हिसाब चुका से है दिया गया। आपका। ये तो सेम हाँ पिछले और साल PYQs है। यही आया था सर। और और सर एक पिछले सवाल तो वो साल आता जैसे, ही है पिछले साल कि जो सबे सीरीज भी मुअल्लक़ात आई में थी से ना कौन इसकी, सा नहीं है। क्या कह रहे हैं? BCDA ऐसा कुछ था ना पिछले साल, हम्म। वही सेम ऑप्शन एक भी वही सब था और उसी तरतीब से दिया हुआ था। एक सबे मुअल्लक़ात से भी था कि कौन नहीं है सबे मुअल्लक़ात में, तो नाबिगा का नाम था वहाँ। हाँ नाबिगा का नाम और था वहां पर। बाकी तो ये 2004 से पेपर उठा रहे हैं लगता है। सर नफाइस और सर दुर्र भी आया उसका था था किसका जॉब, किताब में। और सर जॉब ने कल उसमें डाला था पेपर में, वो लंबी से एक इबारत थी शाहरुख के रिलेटेड, हम्म। सेम वही इबारत फिर से आई थी, ऑप्शन भी था वहां पर, हो गया था तो आज सही हो गया। चलिए, शेर हुर के से ताल्लुक से और नफाइस दुरर के ताल्लुक से भी PYQs में आ चुका है। अब की क्या हाँ सवाल था? उमर काजी उमर बलनकोटी का था, उमर बलनकोटी काजी का क्या है? बलनकोटी का आया था नफाइस दुर्र कसीदा। नफाइस कसीदा दुरर सर, कसीदा है या नफीस दीवान दुर्र, है? क्या पूछा क्या था? मसीदा कसीदा है ना सर। के ऊपर बैठ है ऐसा कुछ बहुत। नहीं नहीं, सर जवाब में ऑप्शन नफी क्या चूज करना था? नफीसुल कदर जो है किन किनका है सर, चार ओके, नाम। पहले था। किनका है? किनका है? ओके, किनका है तो बलनकुती का है, ये हाँ तो हाँ ठीक हाँ है सर फिर। हाँ। जी जी, चलिए हाँ, चलिए। एक वो आया था कि तो किंदील ये, उम्मे हाशिम जो है रिवाया है, किस्सा कसीरा है, मसरहिया है, क्या है। हाँ क्या हाँ सर बात है, उसका क्या इतना था, तो आसान मैंने आसान सवाल पहले किस्सा आएगा? कसीरा लिखा फिर हटा के रिवाया लिखा। रिवाया था चलिए, वो। बच गए सर इदरीस साहब फिर, आप हाँ, मैंने लगता पहले है। किस्सा कसीरा हटा के फिर बाद में रिवाया लिखा था उसको, किंदील उम्मे बहुत हाशिम। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, और बताइए। और वही सर शाह वली दहलवी रहमतुल्लाह, उसके बाद नवाब सिद्दीक हसन खान। हाँ, तो वो हो गया, वो तरतीब लगानी थी, वो सभी लोगों को मालूम है कि जी जी सर। वफात या जो पैदाइश। वफात वफात सर। तो शाह वलीउल्लाह आएंगे, उसके बाद नवाब साहब आएंगे, फिर अब्दुल हई हसनी साहब आएंगे, फिर फसफरी साहब आएंगे। और इसमें उसके बाद गलती वो फर्स्ट करते हैं कि जी फसफरी बिल्कुल। साहब को लोग जो है शाह वलीउल्लाह के जमाने का समझते हैं। ठीक है, तो नहीं इसीलिए बहुत से नहीं गलती जी, करके आए होंगे इसमें। फसफरी साहब जो है इसको उन्नीस यही सौ जो आपने बताया तैतालीस में। पहले यही तरतीब दी हम। अब सही देख के आए हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। जी सर जी बिल्कुल सर, सही। सही सही और सर करके आए। कल का और एक पीवा क्यों आया था अबजदुल उलूम के इससे, अब जदुल ये उलूम नवाब से सिद्दीक क्या हसन था? खान ने क्या ये उसकी डेफिनेशन आई थी अबजदुल उलूम। हाँ, तो क्या पूछा था इसमें? नवाब सिद्दीक हसन खान ने फिर वो अबजदुल उलूम की एक मौसूआ छापा अदब हाँ का जी ऐसा जी। ऐसा, उसका नाम था फिर। ओके ओके, तो मौसूआ नहीं, है, वो चल। हाँ, इब्नुल नदीम के बारे में था ना, फहरिस्त इब्न नदीम के, उसने उसने जो है हाँ उलमा के किताबों के नाम और तराजिम जो हाँ है वो जिक्र बिब्लोग्राफी के किए हिसाब से हैं वो थोड़े दिया बहुत। तो है। वो तो मेरे फहरिस्त इब्न नदीम के बारे में होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं 2 आए थे ना,
एक तो अबजदुल उलूम का भी आया था और फहरिस्त इब्न नजीर का अच्छा भी आया हाँ था, अच्छा दो आए दो थे। मेरे अलग अलग जहन में से था। चलिए एक सेकंड अबजदुल उलूम के बारे में क्या आया था पहले वो बताइए, फिर फहरिस्त वाला देखते पर हैं। अबजदुल उलूम के नाम ही आया था ना पहले, इनका नवाब सिद्दीक हसन खान। किसकी है, उन्होंने किसकी है? पहले नहीं सर, पहले नवाब सिद्दीक हसन खान, फिर अबजदुल उलूम की डेफिनेशन आई थी, फिर बोला था ये कौन सी किताब है नवाब सिद्दीक हसन खान की। ओके 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 ओके, चलिए समझ गया। मतलब ये पूछा गया था कि अबजदुल उलूम के अंदर क्या है और ये किसकी किताब है ना। जी सर ऐसे। चलिए सर वो और इसकी अब्दुल की कोई उस बीच में से कुछ ऐसे या नहीं, कभी किस तरह कुछ से? डाला हुआ था, बाकी सारी बुक्स इसी की थी, इन्हीं की थी, जैसे वो सिराजुल वहाज वगैरह तो पूछा हुआ हाँ था इन्हीं ये। की थी, नवाब सिद्दीक हसन खान की। वशियुल इसकी मरकूम तारीफ वगैरह तो नहीं तारीफ डाल डाली रखा थी था। नहीं सर वो नहीं था। सर, इसकी क्या- तारीफ डाली थी अबजदुल उलूम की, जो तारीफ है कि इसमें हम्म, अनवाए उलूम व फनून वगैरह इस तरह की कुछ इबारत थी। हाँ ओके ओके, अनवाए उलूम और फनून की बात जो भी रही होगी वो अबजदुल उलूम के बारे में रही होगी। हाँ और नवाब ठीक है, सिद्दीक हसन खान का नाम आलिमन कबीरन लहू किताबुन जदीद हाँ तो ये तो नवाब से ताउलूम अबजदुल उलूम के बारे में ही। चलिए तारीखुल उलूम व चलिए फनून। चलिए, गुड 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 गुड। चलिए अगला देखते हैं। हाँ फहरिस्त के बारे में बताइए कि क्या सवाल था। फहरिस्त फहरिस्त के उसकी वो उसकी कौन सी बारे में डेफिनेशन ही किताब आई है, थी शायद। मतलब पहली बार सारे किताब का नाम इकट्ठा किया गया और उनके कातिब का नाम भी इकट्ठा किया गया, हाँ ऐसा तो कुछ। पहली बार जो है फहरिस्त में ही ये काम हुआ है, तो यही सवाल था। जी सर, जी डेफिनेशन दी हुई इसी थी तरह उसकी से। फहरिस्त की। हाँ तो ये तो बस जिसने भी ये लगाया होगा तो फहरिस्त ही आएगा पहली बार जो है। चलिए और जी बताइए, एक सवाल यहाँ पे और है, एक सेकंड, किसी ने लिखा है अगानी के बारे में क्या सवाल था। सर ये वो आया था चार अगानी का तो वही मैच था द कि फॉलोइंग। उसमें जो है अल्हान वगैरह अगानी है और दीगर चीजें हैं, वो इसी तरह की जो है उसके अंदर तो ये मुगन्नियों के नाम और ये किस वो सब किताब के चीजें। अंदर जो है अलहान वगैरह है ये पूछा गया था। ये जी, हाँ अल्हान अगानी है वो तो फिर सर नाम था एक सर और मोस्टली। ऑप्शन था उसमें उसमें एक तो बात पूछे की थे गई कि एक अगानी के अंदर अल्हान क्या की क्या है। और ओके ओके, मुगनियन की। अगानी के अंदर क्या क्या है, तो अब ये तो आप लोगों को पता हाँ ही है चार अगानी के ऑप्शन अंदर। दिए होते, जी चारों जी में चेंज कर करके। जी, चलिए और सर एक सर सवाल और, जी बताइए। तोहफतुल मुजाहिदीन किसके के दू किताब है से? किसकी किताब है या दूसरे फसल में क्या है, क्या पूछा गया था। ये तोहफतुल तोहफतुल नहीं, वो तो मुजाहिदीन किसकी किसके हैं? किताब है बस यही जैनुद्दीन। पूछा गया उसमें। तोहफतुल वहाँ वहां पर पर दो मुजाहिदीन। वहाँ पर सर अव्वल सर और वहां सानी दो दो option। वहां पर हाँ हाँ उसमें जैन। दो ऑप्शन थे कि एक अहमद जैनुद्दीन मलिबारी अल अव्वल और एक सानी। एक कबीर था, अव्वल नहीं तो कबीर था और दूसरा था सानी वाला। हाँ तो सानी सानी वाला वाला मेरे लगा के ख्याल में आए सही हैं कि होगा। नहीं, सानी वाला लगा नहीं के आए सर, हैं जी कि नहीं सानी बताइए। वाला। जी 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 आपको जी जी बताया जी गया वही था लगा क्या। सानी भी कह सकते हैं, सगीर भी कह सकते हैं, दोनों जो है आपके नोट में मौजूद है, लिखा हुआ है। चलिए और बताइए और तो वही मैच द फॉलोइंग में शायद एक अगानी अल हया आया था, मैच द फॉलोइंग में आए थे वो कुछ दो चार बुक्स। फतवा तुकान वाले के अलावा था ये। पता नहीं सब दो तीन मैच द नहीं मेरे फॉलोइंग आए ख्याल थे, में उसी में था ये। लेकिन आए थे अगानिल दो तीन मैच हयात द और फॉलोइंग थे। महदी माल अय्याम एक साथ ही था मेरे ख्याल में। जी 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 सर, वो हातिबुल कौन सा लैल और आपको किसको कहते हैं, शरीफ इसका डेफिनेशन क्या? एक सेकंड, पहले लास्ट सूट करके कुछ था। लास्ट सूट नहीं सर ऐसा तो हाँ सर था, ये ऑप्शन में था लेकिन वो अरबिक क्या था वो अभी याद नहीं आ रहा है। एक अरबिक था, उसका ऑप्शन भी है। लास्ट, हाँ सर वो ये था दावा कज़ाइया। दावा हाँ कज़ाइया दावा था वो। कज़ाइया। हाँ दावा कज़ाविया, आइए लीगल क्लेम लिखा था सर मैंने, लीगल क्लेम लिखा था, एक ऑप्शन वो था, फॉल्स क्लेम दूसरा ऑप्शन था, लॉ सूट लेकिन तीसरा था और भी कोई था। लीगल लीगल वो जो था हमने भी वही लगाया, लेकिन वो गलत है, वही है लॉ सूट वाला जो है सच उसका में वही गलत है है। अरे ये सही है, ये हाँ। सही है। चलिए और कौन बता रहा था बीच में, अभी कोई कुछ कह रहा था। और सर हातिबुल लैल का जो डेफिनेशन है ये पूछा गया था। हातिबुल हाथ लैल। हातिबुल लैल। हाँ सर वो जी हातिबुल लैल। हतबुल लैल था, अख बता मिन हतबुल लैल, ऐसा कुछ था, मुहावरा एक था। ओके ओके ओके, उसकी फिर डेफिनेशन थी, उसका क्या मायना है। मतलब क्या वो है। अच्छे बुरे सब चीजों को इकट्ठा कर देते हैं, उसको हातिबुल लैल कहते हैं। हाँ तो मतलब वो जो वो है, हातिबुल लैल किसको कहा जाता है, और मतलब ऑप्शन दिया गया था।
तो हाँ उसमें दो क्या क्या चार ऑप्शन ऑप्शन, जैसे था? उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि इंसान जमा करता है फिर सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है। और क्या ऑप्शन था? हातिबुल तो लैल उसको कहते हैं जो रात को कुछ भी इकट्ठा कर ले। मतलब होता है ना, एक दिन में आदमी जो है क्या कहते हैं, जरावन कहते हैं उसको, क्या एक कहते तो हैं यार? सर सीधा था कि जो रात को लकड़ी जमा करे, तब हाँ, वो था लकड़ी वहां पर। जमा करके जो है, यानी अच्छा पूरा कुछ भी जमा कर ले। वो दूसरा वाला ऑप्शन था, वो दूसरा, और एक ऑप्शन था कि जो रात को कोई चीज जमा करे लेकिन फिर उसको अच्छा और बुरा की तमीज नहीं हो उसमें, अंधेरे में कुछ भी जमा कर रहा है। तो हमने वही वाला दिया था, पहला और वाला। एक मेरे ख्याल में ये भी था क्या, हल गादर शुआरा मुतरद्दिमी, इसके माने भी पूछे थे क्या? हाँ हाँ, हल गादर हाँ, शुअरा मुतरद्दिमीन मिन की शायर ने हाँ क्या हाँ मुतरद्दिमीन। लिखा है, था ये। इसका हाँ इसका तो कोई मैं सोच मीनिंग रहा है था या कोई ऐसे ही लिख पीवाई दिया? क्यूज में किया हो। हाँ तो ये भी था, इसके माने सबसे फर्स्ट वाला दिया था कि वो, कि शायरों ने जो है कुछ नहीं छोड़ा, मानी में से कुछ नहीं छोड़ा, वही वाला था भी। और हाँ दूसरे हाँ सूट भी नहीं कर रहे थे उसको। हाँ, तो बिल्कुल सही यही होगा ही, ठीक है ना। लम यतरिक शुअरा शैयन, है ना, जी। और ऐसा ही सर ये कुछ भी होगा। था कि अब्बासी दौर में खुतबा सियासी, मतलब वो क्यों कम हो गए थे? क्या शेर जो है हाँ हाँ चोटी पे हाँ हाँ। पहुंचा था, या फिर खुतबा पैदा ही नहीं हुए थे अब्बासी दौर में उतने बड़े बड़े खुतबा? हम्म। तो सर मैंने तो यही लिखा कि शेर की जो ये थी, शेर ज्यादा ये हो गया था मशहूर उस टाइम पे। एक तो ये था कि खलीफा और अवाम के दरमियान में पर्दा हो गया था, हाँ हाँ, वो भी मतलब एक ऑप्शन था। आपस में। दूसरा और था शेर दूसरा जो चोटी था पे ये था पहुंचा कि है, ततव्वुरुन नस्र। फिर नस्र अल तीसरा अरबी, था ततव्वुरुन शेर। शेर अल और अरबी, फिर चौथा था वो कि ये जो बता रहे हैं अदमुल, अभी वो अदब भाई। पैदा ही नहीं हुए है उस हाँ जमाने में कि इतने बड़े खुतबा खुतबा। थे ही नहीं, तो ततव्वुरुन शेर क्योंकि उस वक्त में बहुत ज्यादा था, हमने भी यही लगाया है। हाँ तो हाँ, मुझे अब वही देखो मुझे लिखा यही हमने। लग तो। रहा है। अब मुझे यही लग रहा है, हाँ लेकिन अब एग्जामिनर जहाँ पे से क्वेश्चन उठाया होगा, बहुत से दफा जी ऐसा जी। करते हैं ना, किताब वो खोलते हैं। अब जो, या तो हसन जय्यात के अंदर ये मौजूद हो सकती है ये बात, कि जो है जहाँ पे असर अब्बासी का जिक्र है ना, शोरा का जिक्र है, तो वहाँ वाला अगर पेज अगर आप खोलेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे इस तरह की कुछ इबारत मौजूद हो, तो वहाँ से उन्होंने लिया हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखनी जी। पड़ेगी क्या लिखा है शेर हाँ हसन मुमकिन जय्यात। है, देखा जाए उसमें, हसन देखना पड़ेगा जय्यात ने उसको। क्या लिखा है वहां पे, उसी के हिसाब से जो है जवाब डिसाइड हो पाएगा, ठीक है। और जहां सुन के तो मुझे ततव्वुर शेर लग रहा है, बाकी वो जो है असल में अब्बासी के देखना दौर में पड़ेगा। तो थे भी बहुत बड़े ये खुतबा वगैरह भी थे, तो हाँ उस हिसाब से हाँ क्योंकि लग रहा है कि बस यही था। दूसरा ऑप्शन का मसला वही था कि खुतबा के दरमियान में जो है, मतलब खलीफा और उसके दरमियान में पर्दादारी होगी, लेकिन हाँ उसमें हाँ तो कोई खिताबत पे तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं, हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं लग नहीं, नहीं ऐसा रहा है। कुछ नहीं था, यही था ऑलमोस्ट। सबको यही लगा था, और शेर अरबी। वो मैं अल्लाह तो यही बख्तर, करके अब आया हूँ, देख। मालूम नहीं। जी। चलिए, वो असल जय्यात कोई देखेगा तो वहां मिल सकता है उसको। चलिए, और बाकी बताएं। एक था सर वो एक मुबर्रिद का जो किताब पीरियड है का दूसरा, कामिल। ये अब्बासिक पीरियड का दूसरा नाम क्या था? मुवल्लिद या मुकद्दम ऐसे हाँ करके वो पूछा। था, और वो हाँ एक आया था मुवल्लिद लिखा अल्फ था हमने। लैला का पुराना नाम जो है वो, ए, असातीर का तो जो है कुछ। एक सेकंड पहले मुबर्रिद की कोई किताब थी वो बताइए। हाँ अल कामिल थी, उसके अल बारे में काम, सवाल था, क्या था वो वो। मुबर्रिद ने क्या कहा था कामिल किताब के बारे में, ये आया था। वो जमात जो स्टेटमेंट आप हाँ जमात फीहिन नस्र व नज़्म, जो है ये वाली जो हाँ बात है हाँ ना। हाँ 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 ओके हाँ। जी ओके, जी वो मतलब ये वाला तो है। सर, ये तो जिसने भी पढ़े हैं किसी भी नोट से पढ़ा होगा, सबके पास ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है, चलिए। और दूसरा हाँ तो आपने अल्फ बताया लैला कि व लैला का पुराना नाम है। हाँ, अल्फ अल्फ लैला व लैला का लैला का, ये जो है पुराना नाम था। कदीम क्या नाम जो नाम, है वो, क्या क्या ऑप्शन अस्फारुल में? लाइल, ऐसा कुछ था, अस्फारुल लाइल करके। असफारुल मतलब लैल, वो और है वही वही है। हाँ हाँ वो पूरा नाम पुराना था नाम फिर। वही था उसका। और किताबों के नाम भी थे वहां जिक्र, लेकिन वो अल्फ लैला का क्योंकि पुराना नाम पढ़ा हुआ था, तो इसलिए बस और ऑप्शन देके भी नहीं। नहीं नहीं, अलिफ लैला व लैला ऐसा तो नहीं, फारसी वाला नाम भी मौजूद था। नहीं सर नाम, फारसी तो नहीं पुराना नहीं नाम, नहीं, फारसी वाला पहले नहीं किसी और नाम से छपी थी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था वो। नहीं नहीं, जो पहला वो नाम तो सर ये ना, ठीक है, वो तो ठीक है, असफारुल एक लैल है। मिनट, फारसी एक वाला मिनट क्या है? सर अस्फारुल नहीं लाइल ही पहले फारसी वाला क्वेश्चन में नहीं आया था। था। पहले क्वेश्चन में आया था अस्फारुल लाइल करके पूरा नाम, फिर लिखा था ये कौन सी बुक का नाम है, कलील व जमुना, हाँ अलिफ ओ, लैला व हाँ लैला, हाँ और भी दो बुक हाँ, थी। तब हाँ तब बिल्कुल ठीक है, तब तो ये अलिफ हाँ लैला व हाँ। लैला ये, ठीक है, और भी चलिए। सर डेफिनेशन आई थी इसकी, या तो मुअज्जम दबा थी वो, हम्म, कोई डेफिनेशन आई थी वहां पर, ओके, याद नहीं आ पहले रही लेकिन। एक सेकंड, किसी ने बताया था मुअल्लिदीन के बारे में सवाल आया हाँ, था। शोरा अब्बासी का क्या दूसरा नाम था, अब्बासी पीरियड का? अब्बासी पीरियड के हाँ शोरा का वो दूसरा था नाम? कि यानी शेर अब्बासी जो है, मतलब शेर मतलब अदब कदीम कहलाता है, अदब अब्बासी जो है अदब कदीम कहलाता है, और अदब जदीद, इस तरह के तो ऑप्शन थे। सर
तो अब्बासी तो अदब सदर कदीम में अब्बासी ही के आता बारे है। में पूछा था। हाँ, सदर सदर अब्बासी कि अब्बासी जो भी अब्बासी था। पीरियड का दूसरा नाम क्या था? तो अल मुवल्लिदीन ही था वहां पर, एक दूसरा उनको नाम मौलिद, हाँ ऐसा था ना कुछ। दूसरा नाम इसमें आखिर इसका दूसरा नाम पूछा था अब्बासी पीरियड का। तो उसमें मुवल्लिदीन ऑप्शन में था। जी जी सर, जी वही दिया। था। ओके, तो वही होना चाहिए मेरे ख्याल से जो है, अगर जी सर। दूसरा कोई ऐसी चीज ना हो तो। चलिए, और एक मौजमुल उदबा के बारे में कोई सवाल था? तो ऑप्शन में दो चार थे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मुझे बाती और सर वो ये था कि इज्तिमा के बारे में किस किताब में मतलब बात किया गया था, ऐसा मुझे तो लगा ये कि मुकद्दमा होगा वो जो मुकदमा मैंने किसके भी बारे में? किताबुल हयत, वो डेफिनेशन सर ये दी थी कि इसमें जो है जिंदा ये अदब है, इसमें हयतुन अदब ऐसा कुछ था, उसकी डेफिनेशन दी हुई थी पहले। इज्तिमा के उसमें बारे में कुछ वहाँ पर बात किया गया तालील था, ऐसे तालील कुछ। का अगर लफ्ज भी था, तालील और अगर तहलील का। इज्तिमा व तारीख या इक्तिसाद ऐसा कुछ भी लफ्ज होगा, इक्तिसाद था सर उसमें, और ठीक ये है, था, ऐसा कुछ भी लफ्ज होगा तो मुकद्दमा इब्न खल्दून हो ये था, जाएगा, ठीक है। ये भी था उसमें कि जिंदा अदब हयतुन, ऐसा था कुछ, जिंदा अदब करके ठीक भी है, वो डेफिनेशन। इक्तिसाद हो या इज्तिमा हो या तारीख हो, ऐसा कोई लफ्ज होगा तो उसका जी जवाब सर, जो है मुकद्दमा ही अब वो होगा। मुकदमा ही दिया था हमने सर। चलिए, और कोई? शायद एक सवाल अहमद अमीन के हवाले से बना था, रायदुल अदब अल अरबी, फिर कुछ डेफिनेशन लंबी हुई दी थी, तो वहाँ अहमद अमीन का जवाब दिया था हमने। तो उसमें कुछ तो बात रही होगी, तभी तो अहमद अमीन हाँ की हाँ तरफ हाँ हाँ, गए। वो थी हाँ कि था। उन्होंने तारीखी सिलसिला लिखा है, मतलब वो एक इस तरह का वो था, उसके अंदर किताबें की किताबों का सिलसिला लिखा है उन्होंने इस्लामी सकाफत हाँ के ऊपर। सिलसिला लिखा था हाँ, उन्होंने इस्लामी सकाफत तो किताबों आप का। लोग जानते हैं, अहमद अमीन हाँ के हाँ अलावा सर, कोई नहीं हो सकते हैं। चलिए, जी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बताइए। मजल्लतुल हिलाल था, मजल्लतुल हाँ हिलाल। मजल जी, हिलाल का मजल्लत ये तो था। हिलाल था जुर्जी जिदान का। हाँ जी जैदान का 1992, 1892। बिल्कुल सही। अभी तक मुझे जो है जी सर, एक या दो क्वेश्चन मुश्किल लगा है अभी तक, जो पीवाईक्यूज में ना आया हो। बहुत इजी पेपर था सर, बस जनरल का थोड़ा टफ आया बस था। आप लोगों का जेआरएफ निकल जाए, इससे बड़ी बात क्या है। वरना फिर इजी का क्या करना है जब तक जेआरएफ ना निकले। चलिए, जी सर। और क्या था? सर जाहिज की बुक्स थी तीन, अलग अलग डाली थी तो बिल्कुल। ऑप्शन था जाहिज की बुक्स 4 थी। हाँ, एक वो था उसमें अलग अलग, मतलब एक एक किताब अलग से दे रखी थी। बाकी जो किताबुल महासिन अल बयान ये वत्तबयीन, तो ऑलमोस्ट सेम थी कि एक एक और किताब फिर दूसरी एक और की थी डाली थी। उसमें किताबुल इख्तशास करना था। हैवान, नहीं तो सर, तीन। हाँ हाँ, जैसे नहीं नहीं, सही सही ओके, ज्यादा मतलब जाहिज था, की जो है 4 तो ऑप्शन, उसमें उसमें कई सबसे चार चार कई बुक। सारे दे रखे थे, उसमें एक में किसी में जो है, हर एक में जो है एक एक गलत दे रखा होगा, है ना। एक वाले में जी चारों जी जी हाँ, सर, किताबें सबसे, किसी उसी और की की बुक भी हाँ, होंगी। डाली फिर थी। सबसे नीचे जो है किताबुल जी महासिन जी वल सर। अज़दाद, और इसी तरीके से अल बयान वत्तबीन और किताबुल हैवान थी, हैवान, ये तीन ऑप्शन थे। और चलिए, किताब बिल्कुल। हैवान 4 ऑप्शन थे उसमें, लेकिन लास्ट चलिए, वाला ही था उसका। चलिए, चलिए, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसके बाद और नसरीन, आपने अभी तक एक भी सवाल नहीं बताया है। फिर एक पता नहीं तोहफतुल मुजाहिदीन का था, किसका था उसके दूसरे बाब में, क्या नहीं ये सोबतुल मरजान के बारे में उसके सुबहतुल दूसरे। मरजान के दूसरे बाब में तराजिम थे, वो हो चुकी है बात। चलिए जी, तराजिम उसका था। बस खत्म, 53 ही क्वेश्चन। पिछले बार हम लोगों ने 90 तक पहुंचाया था। और वो पैसेज कैसा रहा? पैसेज जो है, सारे जवाबात पैसेज के थे या कुछ दिमाग से भी हाँ, लगाने? पैसेज के थे, पैसेज में से थे सब। दूसरा वाला पैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग था सर, पहला तो हाँ, ठीक था। थोड़ा, बस थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा उस, मतलब ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं पूछ लिया था कि मतलब कहाँ से ये किताब ली गई है पैसेज, या ऐसा कुछ? नहीं ऐसा नहीं नहीं था। नहीं नहीं, कुछ जैसे नहीं इबारत कुछ एक दी हुई थी किसी शायर की, चलिए। एक तो इमाम गजली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक पैसेज आई थी, हम्म। उसमें से एक क्वेश्चन सीधा ये आ रहा था कि इमाम गजली रहमतुल्लाह जो घरों में है, कोई जगह थी वहां पर किसकी तस्वीर लगाई गई थी, हम्म। तो वहां पर इमाम गजली का नाम सीधा आ रहा था। हाँ, मतलब पैसेज जो और है ऊपर, 2 साल जी दो पेपर से पहले जैसे आ रहे थे वैसे नहीं थे, है ना।
नहीं सर, मतलब नहीं थोड़ा नहीं, बस सब आसान। कुछ उसी से था। छोटी वैसे सी बेसिक जो थी वो थोड़ा सा जहन लगाने से पता चल जा रहा था नीचे सर वाले एक में भी। पैसेज मतलब कंसेप्चुअल उसमें थी, एक मसला ये पैसेज हुआ था कि कंसेप्चुअल। ये दिया था एक, कि उसमें ये पूछ लिया था कि यानी मशरिकी जमीयत जो यानी मुस्तशरिकीन है उनके नजदीक क्या मकाम था उनका। जी जी, तो हाँ वहां दे समझ गया। रखा था फकीह था या वैसे था, एक था एक था वहां वो शख्सियत आलिम दीन फज्जा। वाला था, वो तो कंफ्यूज हो गया। शख्सियतुन फज्जतुन वो ज्यादा मेरे ख्याल में मुझे मुनासिब लगा था वो, कि बड़ा रजुलुन मकाम था, क्योंकि रजुलुन दीनन था वहां वो कुछ। लिखा हुआ था मकान इंदल मुस्तशरिकीन मकानतुन आलियतुन या मरमूकतुन, इस तरह का कुछ था। तो वहां फिर शख्सियत फज्जा का वो भी था हाँ एक बिल्कुल ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फकी और ये करके जो है अलग से ऑप्शन नहीं दिया होगा, पैसेज में नहीं है, और जो है वहां हाँ, पे क्योंकि आलिया ऊपर मरमूका जो है। है हाँ ऊपर क्योंकि ऊपर जो तज़किरा था वो यही था कि मुस्तशरिकीन ने उनके उलूम को, फलसफे को, इसको सबको जो है अख्ज़ किया है। तो इससे फिर यही लग रहा था कि शख्सियत फज्जा जो है ज्यादा मुनासिब ओके है। ओके, जी जी, सही 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 सही, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है सुन के आप लोगों की बात। एक जो लास्ट टाइम शाह वलीउल्लाह के दिया था ना स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट वही उठाया हुआ था, सिर्फ नीचे ऑप्शन में इब्ने कुतैबा दिया था शायद था। कैसा स्टेटमेंट था? सर जो लास्ट टाइम नहीं पेपर में आया था वो मुहद्दिस और उसकी तमाम बुक्स जो हैं वो उसके इल्म हदीस पे हैं, वो वाला स्टेटमेंट पूरा ओके वही ओके, हाँ हाँ था। हाँ, हाँ सही हाँ सही हाँ सही सही, हाँ शाह हाँ, वलीउल्लाह वो का भी था सही। क्वेश्चन में। नहीं वो नहीं, वो सही था। शायद इसका था, इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह का था कि कान इब्न कुतैबा मुहद्दिसन फ़क़ीहन। फिर दूसरा ऑप्शन था ये कि उनकी सारी जो वर्क्स है वो इल्मुल हदीस पे हैं। पूरा कॉपी इल्मुल किया हुआ हदीस पे था। हाँ। वो मतलब पूरा ऊपर कॉपी वाला हुआ। सही था, नीचे शाह वाला गलत था वो। हाँ शाह वलीउल्लाह की जगह पे जो है इब्न कुतैबा लिखा हुआ था। जी सर, जी जी सर, इब्न बाकी कुतैबा के स्टेटमेंट। जी हवाले से जी, आया इब्ने था वो। कुतैबा। जी सर। इब्न कुतैबा का नाम एक था कुछ फ़क़ीहन मुहद्दिसन ऐसा फकीहन कुछ था। मुहद्दिसन, और पहला फिर नीचे था कि इनका यानी था रजुल, जमीउ कुतुब, ये जमीउ मुअल्लफात इब्न कुतैबा अनिल हदीस, इस तरह का कुछ था वो। हाँ, फी इल्मुल हदीस। तो पहला वाला दोनों बस ऑप्शन तो सर स्टेटमेंट सही था। गलत हो जाएगा ये तो। नहीं सर, दोनों पहला दोनों ऑप्शन सही था, दूसरा गलत था। नहीं नहीं सर, दोनों दूसरा गलत थे। गलत होगा। शाह मुहद्दिस देलवी का डाला हुआ था, कॉपी करके सिर्फ ऑप्शन चेंज किया हुआ था बस। तो नहीं सर, वो लेकिन वो पीवाई। इब्ने कुतैबा मुहद्दिस और फकीह तो थे ना। हाँ हाँ, इब्न कुतैबा भी थे, पीवाई क्विज में हमने किया था कल ये। इसका पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है उसका। हाँ, दूसरा ऑप्शन गलत था। इब्ने कुतैबा मुहद्दिस और फकीह थे, लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन में तो वो बतौर नाकिद के शुमार है ना। सर वो नहीं था, स्टेटमेंट वाइज था ना कि ये जो इब्न कुतैबा है नाम फकीह है, वाली मुहद्दिस है, नहीं। ठीक। लेकिन फिर ये भी था ना नीचे के उनकी सारी किताबें इल्म हदीस के बारे में, तो वो गलत था फिर। ये तो मतलब हाँ, गलत बाकी है। क्योंकि के सारी बारे में किताबें भी है, इल्मुल उससे हदीस भी के ये रिलेटेड साबित तो हो थी रहा है। नहीं। चलिए, ये तो चलिए, दूसरा वाला तो गलत है, पहला वाला जो है देखने लायक है। मैं नहीं कह सकता इसमें कुछ। पूछा हुआ था यंतमी अबू कासिम शाबी इला मदरसा, ये दीवान था राबितुल हाँ, कलमियात। ये अपोलो हो जाएगा इसका जवाब। मदरसतुल हरबिया के हवाले से भी आया था, हाफिज इब्राहिम का आया था ना कुछ कि हाँ, वो महमूद सामी अल बारूदी का आया था हाँ ना। हाँ, महमूद सामी बारूदी का था वो। हाँ हाँ हाँ, एक वो नहीं, भी था वो कि कुछ आया उन्होंने था। मदरसा हरबिया में पढ़ा, 1838 में पैदा हुए, वो पूरा दे रखा था इसी तरह। और दूसरा भी था ऐसा कुछ, काहिरा में पैदा हुए इस टाइम पे, फिर पढ़ाई वगैरह करने के लिए बाहर गए, फ्रांस वगैरह, ऐसा भी कुछ था। ये दो सवाल थे सर। चलिए चलिए। सर एक और था, पता नहीं वो किसके बारे में था, रूस और किस जंग में हिस्सा लिया था। वो महमूद हाँ, सामी अल महमूद बारूदी के सामी। बारे में था, जी जी, वो अलग। रूस और अच्छा तुर्किया के दरमियान जंग के में हिस्सा लिया। नहीं जी सर, जी। बारूदी का अलग था, एक और था उसमें बारूदी का ऑप्शन नहीं था, हाफिज इब्राहिम का था, और पता नहीं किस किस का था, रूसी और पता नहीं किस जंग में उन्होंने हिस्सा लिया था। ये बारूदी बारूदी का वाला ऑप्शन नहीं था। बारूदी का भी ऑप्शन था उसमें। क्योंकि बारूदी का ऑप्शन था। बारूदी के अलावा रूस और तुर्किया की जंग में किसी और ने हिस्सा नहीं लिया है। हाफिज इब्राहिम भी थे, बारूदी भी थे। हाँ, तो हाफिज इब्राहिम ने नहीं लिया हिस्सा ना, मसला ये है। ठीक है ना। तो लास्ट ऑप्शन में बारूदी था, मतलब वो उसका जो आंसर था लास्ट में बारूदी था, फोर्थ ऑप्शन में। चलिए। जी सर, ये था अरबी भाषा का था, उसमें वो बारूदी था लास्ट ऑप्शन, लेकिन एक क्वेश्चन और है, मुझे वो क्लियर याद नहीं आ रहा है, कुछ था पता नहीं किस जंग में, हाँ, उसमें नहीं था। इसको गालिबन हाफिज इब्राहिम था, एक था सर वो वलीदा फिल काहिरा, ऐसा स्टेटमेंट आया था लंबा वाला, उसको लग रहा था उसमें ये था। ओके ओके, दूसरा कोई क्वेश्चन था, ओके ओके, चलिए। जी जी सर। और सर ये था उमर अबू रीशा और सफीर लिल हिंद कौन था? हाँ, हाँ हिंदुस्तान। सफीर हिंद उमर अबू रीशा जो है, जिन्होंने जो है मसलहियत ताजमहल और मसलहियत और काजुराहो लिखा कबीर है। किसका है ये भी पूछा गया आपसे। क्या चीज क्या? किसका है? फौजुल कबीर सर, शाह वलीउल्लाह। फौजुल हाँ, कबीर से पीछा नहीं छोड़ेंगे ये लोग।
चलिए तो शाह वली उल्लाह देहलवी का है। सर एक आया था ये औराकुल खरीफ कुछ महजर के हाँ उदबा के हाँ बारे में, एक किसका है? और राकुल खरीफ ये उनका है, क्या कहते हैं? उसमें वहां पर से अली एक महमूद ऑप्शन तहा एक ऑप्शन था। शुक्रुल्लाह जुर्ब भी था उसमें शायद। ऑप्शन में क्या क्या था ये बताइए। नहीं, वो मैच वाला था। वो मैच वाला था, उसमें आया था। मैच नुद्रा वाले हद्दाद भी शायद उसमें थे, और अलग अलग किताबें थी। नहीं नुद्रा हाँ, और राकुल हद्दाद हाँ, खरीफ मैच मैच में यही मैच है था मैच द उसमें। फॉलोइंग था। ओके वो ओके। नाम भी नया लग रहा था, किताब भी नया लग रहा था सर। और जिब्रान के हवाले से एक आया था कुछ लंबा स्टेटमेंट, उन्होंने एक नया कुछ ये किया था, वो बहुत लंबा स्टेटमेंट था। उसमें एक अली महमूद तहा का ये था ऑप्शन, जिब्रान खलील का था, और मिखल नोएमा का था शायद, और भी कोई एक था। हाँ, वो कोई नया हाँ, उसमें शायद। मौसीका बहुत वगैरह का से भी थे, लफ्ज था उसके बहुत से अंदर। थे तो। जी तो और मौसीका का लफ्ज था, तो इस वजह से ना वही लग रहा था जुबरान ही होगा। हाँ हाँ, वो और बाकी तो हाँ, सिलेबस के भी नहीं थे ना, अली महमूद तहा था सादा और जबान, और सादा जबान और राकुल ये वो खरीफ सब। में मिखाइल नोएमा ऑप्शन में थे। शायद थे सर, अच्छे से याद नहीं, और नहीं शायद थे थे, सर, नहीं अच्छे थे। से याद सर नहीं, लेकिन उसमें सर मीखाइल जिब्रान नोएमा दिख भी रहा था थे। साफ वहां पे। चलिए मिखाइल मीखाइल नोएमा, नोएमी ओके ओके, मिखाइल नोएमा नहीं थे। चलिए हो सकता है कुछ और। सर मिखाइल ये नोएमा मुझे तो के, मैच लगता है मिठाई नहीं था थी, ऑप्शन में। थी। नहीं, वो जो इबारत दी हुई थी ना, वो साफ बता रही थी जिब्रान के बारे में, ये मसला है, वो क्लियर बता रही थी। इबारत ओके याद ओके नहीं, ये भी बहुत लंबी थी। ओके ओके। चलिए और कुछ बचा है? सर एक पूछा था, ये उंदलस के मतलब मशहूर वो थे, और पूछा था कि वो उनके पता नहीं वजीर खानदान से थे, कुछ ऐसा था। हाँ, वो हाँ, वल्लादा वजीर का आया था। खानदान से वल्लादा का जिक्र था वहाँ, इब्ने मोशा जैदून का जो था, जिसने इब्ने लिखा है, खफ्फाजा का था, और था। उसमें ये था कि हाँ, किसने मोशा लिखा है, और वो थी खानदान से। मिन हाँ शुआरा इल मुअश्शहात मिन उसरतिल खलीफा, इस हाँ, तरह जी ऐसा जी वो था, जी था। हाँ, जी। को वल्लादा लिखा था हमने, इब्ने तब अब्द उसका क्या रब्बी था? ही था। इब्नो अब्दी रब्बी ही का उसमें, लेकिन नहीं था मेरे ख्याल में। इब्ने अब्द उसको वल्लादा रब्बी, थी, हमने इब्ने वल्लादा लिखा जैदून था। था, इब्नो खफ्फाजा था, और एक और था नया सा नाम। वल्लादा भी थी ना सर, वल्लादा लिखा था मैंने। वल्लादा ने हाँ, मोशा लिखा वल्लादा है। लिखा, क्योंकि पता नहीं सर, खलीफा की तो कंफ्यूज हो गया। वही थी। नहीं नहीं, मतलब जो है वल्लादा ने अगर मोशा लिखा है, मोशा सर मैंने नहीं। वजीर के औलाद से अब थे, ये ये वहां पर कहा गया था, ये तो किसी वजीर का वजीर के औलाद से वल्लादा नहीं थी, वल्लादा खलीफा के औलाद से थी। खलीफा था खलीफा सर, की औलाद खलीफा। से थी, हाँ, ऐसा इसी वजह से सर वल्लादा खलीफा लगाया ही था। कहा गया था सर। अगर खलीफा होगा तो खलीफा के औलाद में तो वल्लादा है, लेकिन सर अगर सर वजीर, एक अब वल्लादा ने लिखा है, मुअश्शा नहीं लिखा, ये नहीं मालूम। नहीं नहीं सर एक खलीफ, जैदून, और एक वो हफ्सा, और एक कोई नया नाम था, ये 4 ऑप्शन थे इसके। हाँ हाँ, हफ्सा 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 हाँ। भी नहीं होंगे, इब्न जैदून भी नहीं सर, नहीं होंगे। वल्लादा ही थी, खलीफा खलीफा अगर की। है तो वल्लादा होंगे। जी अगर सर। वजीर हाँ, है फिर तो फिर जो है नहीं सर, दूसरा कोई हो खलीफा था, सकता है। नहीं, खलीफा की वजीर खानदान नहीं, से थे। खलीफा, खलीफा था हाँ उसके हाँ अंदर। तब वल्लादा मिन ही होंगे। उसरतिल खलीफा। किसी के जो है बीवी के ताल्लुक से कुछ पूछा गया था कि किसकी बीवी है या कुछ ऐसा? नहीं सर, वो पैसेज था, सेकंड वाला पैसेज, हाँ, ज़ौजा उस और माँ, उसके फजीलत वगैरह हाँ, वो पे तो था। ये था कि घर की जिम्मेदार कौन होती है, वो पूरा वो दे रखा था उसमें, कि बाप तो बच्चे को उठा भी नहीं सकता, माँ जो है बच्चे को शफकत देती है, सब प्यार देती है, सारा कुछ माँ ही करती ओके है घर में। ओके तो ओके वो ओके। तो और भी सारा सर, क्लियर था। कोई एक इसका था, उसका ऑप्शन थे, 2 शायर थे और 2 शायरा थे उसके ऑप्शन में, कुछ तो सवाल था वो। ओके ओके ओके। सर असवाफ पर भी एक था। पैसेज था ना वो, सूख पर पैसेज था। नहीं सर, नहीं सूख सर, पर वो पैसेज। हाँ सूखे सर, अवकाश का सूख पूछा पर हुआ भी था एक कि क्वेश्चन था। जिसमें लोग हज भी करते थे और खरीदो फरोख्त भी करते थे, यही था अरबिक में, और उसका हाँ, सूखे अवकाश। ये भी आया वो था, जो ये भी आया था, मजन्नत था उकास शायद। के बारे में भी। हाँ, उकास हाँ का भी था हाँ, तो उसमें। सूखे अवकाश होगा वहां पे, जवाब होगा। चलिए बहुत अच्छा। सर, सूखे आखिरी अवकाश जवाब। लेकिन कैसे सर होगा उसमें उसका? आया था वो अशहुरुल हुरुम आया था लफ्ज, अशहुरुल हाँ सर, हुरुम में। उसमें आया था कि हुरुम के महीने में लोग आते हैं, उनसे सामान लेते हैं हज के रिलेटेड। तो हज के रिलेटेड तो जुमज्जन लगता था ना, लास्ट के 10 दिन। नहीं, उकास में हज की अदायगी के लिए आते थे, सामान्य तिजारत का जिक्र था उसमें, सामान्य तिजारत भी जिक्र करते थे, और अदब का भी वो होता था। अदाए हज के लिए मतलब आते ही थे, वो तो उकास ही होता है वो तो। जुल्मी लेकिन जन्नत तो बाहर लगता था, थोड़ा अशुर मक्का हुरुम से जो आया था फासले ना, पे। अशुर हुरुम जो आया था सोके वो। सोके अवकाश जिलहिज्जा में होता है। नहीं सर, ज़िकादा में। ज़िकादा में, ज़िकादा में होता है, तो ज़िकादा भी तो अशहुर हुरुम में आता है। ज़िकादा भी अशर हुरुम में, जिलहिज्जा फिर तो सर तीन गलत हो महीने, गया, हाँ वो। 3 महीने लगातार हैं।
हाँ सर, फिर वही गलत हो गया। है आपके हज साथ के हवाले 3 से देखा, महीने मुझे लगा लगातार है ना अशूर हुरम? जी सर, वो मैंने असल में हज के रिलेटेड देखा, मुझे लगा लास्ट के 10 दिन वो बाजार लगता था हज का। ज़ीक़ादा भी उसके अंदर है, क्योंकि ज़ीक़ादा इसलिए क्योंकि ज़ीक़ादा के अंदर भी मतलब लूटमार नहीं होती थी, लोग आजादी के साथ आया करते थे उसके अंदर वहाँ। ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा और देखिए हम लोगों मज्जाज को अशूर हुरम भी याद नहीं हम लोगों को। देखिए क्या और मुसलमान। मुहर्रम है ना सर, मुहर्रम में ज़ीक़ादा शायद, मुहर्रम है, और मुहर्रम है रबीउल अव्वल है शायद। शायद। हाँ मुहर्रम में शायद, और वो 3 है लगातार। चलिए, और सभी लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है। सर मैथ के कॉलम जो थे 2 बहुत अजीब से थे, कुछ समझ नहीं आई थी हाँ मुझे। उनमें से बस एक ही मिल रहा था, जिसे ये हाँ वो औरकुल खरीफ वाला मिल रहा था, बाकी 3 तो नाम ही नहीं पढ़ने आ रहे थे। हाँ, एक और बिल्कुल नया सा कुछ था, उसका कुछ याद भी नहीं है, अजीब सा था वो। वो वही था जो अभी हमने पढ़ा, वो मुजाहिरा मंसूबा वगैरह का। सीटीबीटी कुछ था क्या? इसका सर, हाँ वो एक ये था ट्रांसलेशन उस, था क्या? हाँ हाँ ट्रांसलेशन में था सर। एक था पहला ऑप्शन सीटीबीटी, उसका लेकिन सर दूसरा ऑप्शन था, वो आया था अरबिक में। डीयू के पीवाईक्यूज में आया हुआ है ये सीटीबीटी। उसका दूसरा वाला ऑप्शन था। एक क्या? इस जमात अबुलू का पूछा था, वो तो पीछे ऑप्शन में डाला हुआ, आगे सीधा क्वेश्चन में, दोनों उसी से हाँ निकल फिर रहे। तो वो हो गया, मजे आ वो गए तो। होंगे आप लोगों के एकदम जो है। चलिए, सर वो था इत्तिफाकिया, तो मतलब शुरू में था और आखिर में नवावी था, और उसके ऑप्शन में मतलब ये सीटीबीटी एनजी ऐसे कुछ मतलब ये ऑप्शन में दिया था, और मतलब पूरा न्यूक्लियर नाम का था याद। शायद कुछ। हाँ सर न्यूक्लियर का था कुछ, यहाँ से एक ही ऑप्शन में एन वर्ड आ रहा था, तो फिर न्यूक्लियर समझ के वो नववी आ रहा था ना ऊपर ट्रांसलेशन में, तो यहाँ से एक ही ऑप्शन में एन वर्ड आ रहा था। ओके ओके। इसका इसका कौन सा सही होगा, कोई बता सकते? सीटीबीटी वाला इत्तेफाकिया करके होना चाहिए। एक सेकंड में हम भी देख लेते हैं नेट पे, इसका तो फुल फॉर्म जो है उस पे भी आ जाएगा। इत्तेफाकिया था सबर, इत्तेफाकिया था असल में, इत्तेफाकिया अदमुल इंतिशार अन्नवविया, ये था सर। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो सर है। ये था इत्तेफाकिया अदमुल इंतिशार अन्नवविया। इत्तेफाकिया तो आदमी इंतशार अन्नबवी होना चाहिए। ये था सर। इसका वो एन से कुछ था, मैंने वो लिखा था। आपके जो है मैंने मुआहदतु वो हदद पहले शाह। इन और आखिर में जी था, वो किया। ओके ओके ओके, चलिए कोई नहीं। इसका क्या था सर? इसमें जो है इत्तेफाकियत अदमिल इंतिशार अन्नवविया। हाँ ऐसे कुछ है। अच्छा, सीटीबीटी कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। नहीं सर ये नहीं था, ये इसी ऑप्शन में था ना सर जिसमें सीटीबीटी था, उसमें ये भी था ना, ये इसी की ट्रांसलेशन का ये था ना ऑप्शन। जी जी। चलिए, इसके अलावा और कुछ याद है? और फर्स्ट पेपर कैसा रहा? उसको तो सर, उसका तो सिर्फ डी इजी आया था, बाकी सारा मुश्किल था। डीआई क्या था आपके, क्या कहते हैं, रेशियो ये बेस सर, था या 2 कॉलम था, क्या था ये? ये सर ये था, ये तो पहले बहुत इजी था। ये था कि ट्रैवल का था, कि कोई दिल्ली गया है, कार से गया है, ट्रेन से गया है, बाय एयर गया है, ऐसा कुछ था। बस 2-4 सिटीज के नाम दिए थे और यहाँ से ये दे रहा था। 6 सिटी में, और मतलब 5 टाइप के गाड़ी से गए थे, हाँ 6 सिटी में ट्रेन 5 वगैरह टाइप की थी, तो कहाँ से उसको जा रहे थे, निकालने। कोई ना रेशियो था ना कुछ, ज्यादातर डिफरेंस ही पता नहीं थी, एवरेज था। मतलब जो है कर लिया आप लोगों ने, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इतना आसान आया था, कुछ लोग जो है डीआई को छुए नहीं होंगे, तो वो बेचारे नहीं कर पाए होंगे। ये बहुत आसान था, लेकिन आखिर वाला मिला नहीं पाया सर। एक आखिर वाला ये मतलब? आखिर वाला एवरेज बहुत इजी था। सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस यही था, लास्ट में एक था उसको करने। हाँ लास्ट में ये था। लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि एडिशन करना था, फिर उसको एवरेज हाँ निकालना था, फिर सब्ट्रैक्शन करना नहीं, था। जब जो है डीआई आसान होता है तो टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि फिर उसमें सवाल जो है बड़े लेंदी लेंदी होते हैं।
हाँ, मेरा तो अगर सर वो रेशियो वाला मेरा आता तो वो जल्दी होता है, ये एडिशन वाला थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में। रेशियो वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे सवाल देते हैं वो, लेकिन नहीं सर, इसमें सिर्फ टाइम इसलिए भी कम लग रहा था क्योंकि परसेंट में नहीं दिया हुआ था, हाँ सीधा हाँ, दिया हुआ था किसी को कम नंबरिंग लगा में। होगा, किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा लगा होगा, वो तो आपके ये है, इसके ऊपर है, कोई ऐसी बात मतलब नहीं। बाकी तो रेशियो सर वाला तो 2-4 मिनट में हो जाता है, ये थोड़ा मेरा ज्यादा तो टाइम। जनरल पेपर 2 घंटे में पूरा हुआ। 2 घंटे वो में एक आपने था ना, जनरल वो पेपर। एवरेज निकाल कर डिफरेंस करना था, 10 मिनट में वो नहीं हुआ, कर पाए। बाकी मुझे 2 घंटे लगे फिर ओके, जनरल पेपर खत्म करने में। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये मतलब और जो पेपर 1 था ना, वो अगर सादिक सर के हिसाब से पढ़े, जैसे सर एक एक मतलब हिंट निकाल कंसेप्ट के, बेस था, पूरा वर्ड्स कंसेप्ट को बेस हिंट था। निकाल के करते थे, उस तरह से करें तो आसान लग रहा था। अगर पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से करें तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हिंट एक एक वर्ड को पकड़ के अगर करें तो इजी लग रहा था। वैसे ही आंसर सारे सॉल्व हुए हैं, जैसे पेपर 2 में वैसे ही हुए हैं। हाँ, बस ये वर्ड याद करने थे सर। कभी कभी ऐसा वर्ड आता था कि डिफरेंट हो जाता फिर ऑप्शन वहां से। हम्म। वो तो जो है आपको वैसे ही पढ़ना ही है, सभी लोग वैसे ही बताते हैं कि आपको फर्स्ट पेपर में जो है वर्ड पकड़ने हैं आपको, कि कौन सा चीज कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कौन पर सा फिर भी वर्ड। पूरा कंसेप्ट बेस था आज तो, ऐसा नहीं कि रट के जाएंगे और हो जाएगा। कंसेप्ट बेस था पूरा। तो आप लोगों को कंसेप्ट ही तो समझाया गया था, इवन जो रटवाया थोड़ी गया पैसेज था भी फर्स्ट एक थे, पेपर में। एक पैसेज में भी तो ये प्लस माइनस करना पड़ा पैसेज के एक क्वेश्चन में। ओके ओके, चलिए, मतलब अगर कुल मिला के देखें तो पेपर ठीक ठाक सा था, ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल हो और ऐसा भी नहीं था कि बहुत आसान हो। अभी तक जो सर सवालात आप लोगों को याद थे जनरल तो सर, जनरल तो बहुत मुश्किल था, एडवांस लेवल पे मुश्किल था। सर पहला देखिए पेपर, लेकिन बाकी मैक्सिमम जो पहला दूसरा जो पेपर यहाँ हमने पढ़ा सारा से लग रहा था पूरा सब इसी में से था देखिए मैक्सिमम। उससे उससे ज्यादा कुछ है भी नहीं सिलेबस में जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो उससे ज्यादा जब है नहीं तो उसी में से वो पेपर बनाएंगे। अब वो है कि जी थोड़े से अल्फाज बदलते हैं, थोड़ी सी चीजें बदलते हैं। अब मसला ये है कि जो ये पढ़ के नहीं जाएंगे, जैसे हमारे कोर्स में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर सभी लोग अगर सही से पढ़ के आए होते तो जो है उनकी अच्छा पेपर जाता। जो लोग सिर्फ ज्वाइन होके जो है ऐसे आराम से रहते हैं तो फिर उनका पेपर अच्छा नहीं जा सकता है ना। वो तो फिर ये नहीं कह सकते हैं कि आपने पढ़ाया नहीं या हमने आपके इसमें से आया नहीं, ठीक है ना। सर क्योंकि भी इसके अलावा कुछ नहीं है कोर्स में, ना ही फर्स्ट पेपर में, ना ही सेकंड पेपर में, जो कि आपके पास ना हो। अब उसी में से घुमा फिरा के सवाल बनाते हैं वो लोग, ठीक है ना। सर अरबिक के कितने क्वेश्चंस किए हमने? 60 प्लस किए हम लोगों ने। 62 और 10 72। एक बहुत बुक्स सारे थी क्वेश्चन। पेपर में, किसी को याद है? 2 बुक्स पता नहीं किसकी पूछती कि वो नहीं है। वो मैमनी साहब का किताब था, वो सिमतुल लयालिया और अबुल अला हाँ उमाइलही था, हाँ, ये दोनों उनका था। और 2 किताबें और कुछ और बाकी थी। दो वाला बाकी दो कहा था कि किसका नहीं है, बाकी दो किताब मतलब अब ये क्या, वो अब्दुल अजीज मैमनी का कौन सा दो किताब नहीं है, ये पूछा हाँ हाँ गया हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल। जी ओके, सर नहीं है। अबुल अला जी ये जी 2 जी। थी, इनके अलावा 2 और सिमतुल पूछे लयालिया और अबुल अला उमाइलही था, ये दोनों उनका है, बाकी दो तो अलग से बाकी तो नाम था। कुछ अल और थे उबाब, तो वो तो कट अल गई थी। उबाब था एक, और दूसरा नाम वो याद नहीं है। ओके, होतैया के बारे में कोई सवाल था? जी जी, शायद होती का था वो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किससे मतलब वो हाँ, उसे 3000 दिरहम उनका दे ये, के ये हाँ हाँ मुसलमानों की इज्जत खरीद ली थी, वही वाला। हाँ हाँ, जी जी, ये था होतैया का। चलिए कोई नहीं, एक सिंपल सी बात है, जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं, जो यहाँ हम लोग बैठ के डिस्कस इतनी आसानी से कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। हकीकत ये है कि यही आसान सवालात जब एग्जाम हॉल में आ जाते हैं तो हम जी, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला बहुत लगाएं बहुत कि ये वाला कंफ्यूज हो रहा लगाएं, है ठीक सर, है। तो बहुत बाहर बहुत हो रहा बाहर बैठ के कहना आसान होता है। हकीकत यही है कि पेपर आसान था या पेपर ये था वो था। बाहर बैठ के आप कुछ भी ज्ञान देते रहिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और सर ये होता है जो पढ़ के जाता है ना उसको तो इजी लगता है, जिसने नहीं पढ़ा तो उसको मुश्किल लगा होगा। हाँ, ये भी एक पहलू है कि जिसने सही से इस्तेमाल किया होता है, सही से पढ़ा होता है, उसको कुछ चीजें आसान लगती हैं। जिसने कुछ छोड़ बाढ़ के पढ़ा होता है, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, कुछ किया कुछ नहीं किया, तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन ये है कि जिसने पीवाईक्यूज भी अगर 2004 से 2024 तक कर रखा होगा, 23 तक जो है पीवाईक्यूज भी अच्छे से कर रखा होगा, तो 70 नंबर तो उसके जो है आने चाहिए कम से कम, अगर सिर्फ पीवाईक्यूज किया है उसने। 70 क्वेश्चन के सही हो सकते हैं सेकंड पेपर में,
क्योंकि तकरीबन सारी चीजें जो है ये सब पूछी जा चुकी हैं किसी न किसी तरीके से, जी सर। समझे। कुछ वर्ड मीनिंग के क्वेश्चन है वो तो मैच नहीं करते हैं आमतौर पर, इसमें भी CTPT वाला DO में आ चुका है। आपका वजारत तनमियती वल ग़िज़ाअती व ज़िराअ वाला वो भी आपके जो है PYQs में आ चुका है। तो कुछ सवाल उसमें से भी PYQs के हैं, चाहे वो DU के PYQs में आया हो या JNU के PYQs में आया हो, ठीक है। चलिए, बाकी बेस्ट ऑफ लक आप तमाम लोगों के लिए। सवालात अगर आप लोगों के जहन में आए तो मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं इसको ऐड कर दूंगा। बाकी जो है फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जो है अगर जिंदगी रही तो फिर कभी एग्जाम जब पेपर आउट होगा, जब क्या कहते हैं आंसर की आएगी, तो फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बाकी आप लोग जो है ईद तक आराम कीजिए, बिल्कुल जो है सुकून से रहें। ईद के बाद जो है पढ़ाई करें दोबारा से, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है आपके फेवर में। अगर आपका आज़म है, पुख्ता इरादा है कि आपको JRF निकालना है, तो ये मत वेट कीजिए कि जो है जब रिजल्ट आएगा तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे दोबारा से। थोड़ा बहुत मुताला शुरू कर दे, मुताला में रखें चीज़ें, चाहे वो आप PYQs करते रहें या किसी का मॉक टेस्ट करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। ये जो 1-1.5 महीने का अगर लंबा गैप आ जाएगा तो जो कुछ आपने याद किया है वो सब आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो भूलना नहीं है, तो भूल ना भूलें इसके लिए आप जो है कम से कम PYQs करते रहें, दिन में 1 घंटा 2 घंटा ही, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा उन लोगों को कि जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की थी, अच्छा वक्त दिया था, कि फिर से वो जो है 10 घंटे देना शुरू करें, बिल्कुल ना करें अभी, ठीक है। वो लोग हाँ 1 घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा तक वो दे, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं की है, जिन लोग सिर्फ टाइम पास किए या जो है उन्होंने सीरियस नहीं लिया, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले जो है अपने आप को अच्छे से तैयार करें। और अच्छे से तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि बकरीद के फ़ौरन बाद से आप अपना टाइम शुरू कर दें, ठीक है। सर अगर आपने जो है सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी करें, अगर आपने कहीं से पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ें। चाहे फर्स्ट पेपर में अगर आपको कमज़ोरी दिखी है और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, क्योंकि हर एक जानता है अपने बारे में कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया है, ठीक है। तो वो जो है अपना जो है कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, फर्स्ट पेपर की क्लासें ही करता रहे, बिल्कुल नील ना हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई कुछ नहीं पढ़ना है, तो फिर 1.5-2 महीने बाद किताब उठाइएगा तो सब शुरू से याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस चीज़ से बच जाइएगा अगर थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा हो, जो भी यहाँ पे हैं या यहाँ पे नहीं है, जो भी हमारे साथ थे सबके लिए अच्छा हो। जी मोहम्मद अली PI, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। मोहम्मद अली कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ वो नहीं, 2 क्वेश्चन ऐसा था वो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है मुझे। हाँ ऐसा फरमाओ इस पे। चलिए कोई नहीं, आप मुझे लिख के मुझे भेज दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन इंशाअल्लाह जो है आप लोगों से। बाकी जो है मास सलामा, अल्लाह आप तमाम लोगों को कामयाब करे, सबकी अपनी अपनी मुरादें हैं वो पूरी हों। मास सलाम। वालेकुम सलाम। वाह।